कि जो इस वक्त एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है किसान के संघर्ष में और केंद्र सरकार के बीच में, और जो बिल पास हुए थे इन सबको आप अभी तक, क्योंकि आप पंजाब पर भी बड़ी नज़र रखते हैं और आपके पास बहुत सारी इनपुट्स हैं, अभी तक आप इन खेती कानून जो पास हुए हैं केंद्र सरकार ने किए और अब तक का जो संघर्ष है, किसानों का जो गुस्सा गिला है, उसको आप कैसे देखा है अभी तक? वास्तविकता यह है कि ये तीनों विचार नए नहीं हैं। मोदी सरकार इनको अपना मौलिक विचार मानकर प्रस्तुत कर रही है देश के सामने, जो कि गलत है। 2019 का चुनाव तभी आने वाला था, आसन्न था, वो निकट था, तो किसानों को ये लगा कि चुनाव के समय ये जुमले बोल देते हैं, करते कुछ नहीं। अब अगला चुनाव आया है तो इन्होंने ये एक और शगुफा छोड़ दिया। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह मौलिक विचार नहीं है। 1990 से ये सिफारिशें कागजों में, फाइलों में दबी पड़ी थी। व्यवसाय की दृष्टि से देखें, पेशों की दृष्टि से, तो किसानी भारत का सबसे बड़ा पेशा है। 60% से ज्यादा लोग अभी भी किसानी के ऊपर निर्भर हैं। 50% के करीब उसमें रोजगार मिलता है। 90% हमारे सुरक्षा बलों के, जिसमें पुलिस भी है, अर्धसैनिक बल भी है और सेना भी, उनके सिपाही से लेकर अफसर तक 90% ग्रामीण क्षेत्रों से जाते हैं। केंद्र सरकार वालों ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਉੱਠੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਸਿਖਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12ਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 8 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 78 ਸਾਲ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੇਟ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। शास्त्री साहब, हम चाहेंगे कि जो इस वक्त एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है किसान के संघर्ष में और केंद्र सरकार के बीच में, और जो बिल पास हुए थे, इन सबको आप अभी तक, क्योंकि आप पंजाब पर भी बड़ी नज़र रखते हैं और आपके पास बहुत सारी इनपुट्स हैं, अभी तक आप इन खेती कानून जो पास हुए हैं केंद्र सरकार ने किए, और अब तक का जो संघर्ष है, किसानों का जो गुस्सा गिला है, उसको आप कैसे देखा है अभी तक? अमरजीत जी, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साक्षात्कार लेने का निर्णय किया। मैं पंजाबी समझ तो लेता हूं, पर मैं फ्लुएंटली बोल नहीं पाता, कभी कभी यूज कर लेता हूं कुछ, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं ज्यादातर हिंदी में ही बात करूंगा जी। एक तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि किसानों का जो वर्तमान रोष है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ये दावा बहुत मजबूत कि ये तीनों जो वैधानिक परिवर्तन उन्होंने संसद के माध्यम से किए, ये किसानों के हित में क्रांतिकारी सिद्ध होंगे, क्रांतिकारी साबित होंगे। इन दोनों के बीच ये जो विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, ये क्यों है? एक तरफ सरकार जोर शोर से दावा कर रही है किसानों के को पहली बार आजादी देने का, दूसरी तरफ किसान परेशान हैं और सड़कों पर आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, विशेषकर उत्तर भारत के किसान, जिसमें पंजाब अग्रणी है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आप ये पाएंगे कि जब भी किसान के मुद्दे उठते हैं तो ये तीनों प्रदेश ही अग्रणी रहते हैं। तीनों प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का तो पश्चिमी भाग प्राय है, और कभी कभी आंदोलन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में होता है, वहीं ज्यादातर किसानों के नेता हैं, वैसे संगठन सब जगह हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि एक तो ये विचार, ये जो तीनों सुधारों का है, एक तो मंडी समिति में सुधार का, कि उससे किसान को आजादी मिले, उसको एक वैकल्पिक चॉइस मिले कि वो बाहर भी बेच सकता है, ये बाध्यता, ये अनिवार्यता, मजबूरी नहीं रहे कि वो मंडी में ही आकर बेचे। और दूसरा ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने शुरू किया है, और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, आवश्यक जिन्स कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसमें जो इन्होंने संशोधन किया है, तो ये तीनों को क्रांतिकारी बता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ये तीनों विचार नए नहीं हैं। मोदी सरकार इनको अपना मौलिक विचार मानकर प्रस्तुत कर रही है देश के सामने, जो कि गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1990 में जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और मुझे सौभाग्य रहा है उनके साथ बहुत निकटता से काम करने का, और चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे और भारत के कृषि मंत्री थे। उस समय एक समिति नियुक्त की गई थी जिसका नाम था उच्चाधिकार प्राप्त समिति, हाई पावर्ड कमेटी, टू गो इनटू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, टू रिव्यू ऑल दोज पॉलिसीज। जितने भी कार्यक्रम खेती के संवर्धन के, प्रोत्साहन के थे, उन नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए उस समिति को कहा गया था। और मेरे सुझाव पर ही एक बहुत जाने माने विद्वान, जो स्वयं किसान भी थे, राजनेता भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, विशेषकर ग्रामीण अर्थशास्त्र में उनकी विशेषज्ञता थी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। पंजाब से उसमें डॉक्टर हरदेव सिंह सांगा सदस्य थे, 11 और लोग थे। उस समिति ने इन तीनों की सिफारिश की थी, और ये रिपोर्ट भारत सरकार को 26 अगस्त 1990 को दे दी गई थी। उसकी 51वीं क्लॉज में ये तीनों सिफारिशें हैं। उसके बाद मैं जब संसद में रहा, संसद की विभिन्न समितियों में रहा,
जब मैं मंत्री बना तब भी, और जब योजना आयोग में रहा तब भी मैं प्रयास करता रहा कि ये तीनों सुधार लागू हों, पर वो सब सरकारें उसमें सारे सम्मिलित हैं, राजनीतिक दल का एक का दूसरे का सवाल नहीं है, सबने अनदेखी की। अब आखिर मोदी सरकार ने उनको उनमें से निकालकर और उनको लागू करके ये दावा ठोक दिया कि हमारा मौलिक विचार है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह मौलिक विचार नहीं है, 1990 से ये सिफारिशें कागजों में, फाइलों में दबी पड़ी थी। दूसरी बात ये, एक तरफ ये दावा कर रहे हैं, और जैसे आपने भी फरमाया और हम देख ही रहे हैं, रोज अखबारों में, मीडिया में आ रहा है कि किसान कितने उत्तेजित हैं, कितने आंदोलित हैं, कितने विचलित हैं, कितने परेशान हैं। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि 2014 का जब चुनाव था, तो उसमें आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। एक तो यह की गई थी कि एक स्वामीनाथन आयोग बना था, जैसे आपने फरमाया, राष्ट्रीय किसान आयोग, उसका प्रथम अध्यक्ष मैं था। और जब मैंने इस्तीफा दिया 2004 में, जब हमारी पार्टी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हार गई थी, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा। उसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन आयोग के नाम से प्रसिद्ध है पब्लिक में। उसने ये सिफारिश की थी कि किसान की खेती के ऊपर C2 स्तर की जो लागत आती है, उसके ऊपर 50% जोड़कर सभी जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाएंगे, और सरकार उनको सुनिश्चित करेगी कि वे किसानों को मिलें। बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया गया था, जितने और मुद्दे थे सबसे ज्यादा जोर शोर से इस बात का प्रचार किया गया। दूसरे, मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो किसान बड़ा उत्साहित हुआ, उनको समर्थन भी मिला, उनके नेतृत्व में सरकार भी बन गई। पर आश्चर्य की बात है कि 14 में उन्होंने शपथ ली, और 2018 के आखिरी तिमाही में उन्होंने वो सिफारिश कागज से निकाली और कहा कि हम इसको लागू कर रहे हैं। और लागू करते समय उन्होंने क्या किया कि C2 के स्तर को घटाकर A2 प्लस FL कर दिया, यानी A2 कॉस्ट होती है और जो फैमिली लेबर की लागत आती है, तो उस स्तर को नीचा करके उसका 1.5 गुना करके उन्होंने मूल्य घोषित कर दी। तो 4.5 साल तक हाथ नहीं लगाया। 4.5 साल बाद क्यों किया? क्योंकि 2019 का चुनाव तभी आने वाला था, आसन्न था, वो निकट था। तो किसानों को ये लगा कि चुनाव के समय ये जुमले बोल देते, करते कुछ नहीं, अब अगला चुनाव आया है तो इन्होंने ये एक और शगुफा छोड़ दिया। तो उस समय इन्होंने लागू किया, उसकी परिभाषा बदली, तो उससे किसान को ऐसा लगा कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, ठगी की गई है। इसलिए सरकार के और जनता के बीच में जो परस्पर विश्वास होता है, वो बहुत बुरी तरह से डिगा जी। अब जब ये सुधार लाए हैं, तो इन सुधारों के पीछे भी एक अमरजीत जी कहानी है। मैं भारत के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के सत्संग में, उनकी कंपनी में रहा हूं। नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, परंतु वो सारे अंतरराष्ट्रीय आधुनिक उदारीकरण की भावना से, धारणा से प्रभावित होकर ये वकालत करते रहे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको समाप्त कर दिया जाए, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भाव आते हैं किसानों की जिन्सों के भाव, उसके हिसाब से स्वाभाविक रूप से तय होने दिए जाएं। सरकार को इनकी खरीद के ऊपर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य पदार्थों को बांटने का जो काम करते हैं, वो बहुत बड़ा बोझ पड़ता है उसके राजस्व के ऊपर, एक्सचेकर के। उससे विकास की गति रुकती है। आधारभूत ढांचे में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सार्वजनिक निवेश, उसमें कमी आती है। इसलिए इनको समाप्त कर दिया जाए। ये सुझाव अक्सर हमारे सामने भी आते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने भी आते थे, VP सिंह जी के सामने भी आते थे, नरसिंह राव जी के सामने भी आते थे, परंतु उन्होंने कभी भी इस प्रणाली को समाप्त नहीं किया। वर्तमान सरकार ने जो किया है, तो किसान को आशंका है, और मैं उस आशंका में सम्मिलित हूं। ये बहुत पेटेंट और बहुत जेन्युइन आशंका है कि सरकार कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और जो सरकार द्वारा अभी नियंत्रित वैधानिक जो स्ट्रक्चर है मंडी समिति का, उसको तो नहीं बाहर फेंक देगी। अगर ऐसा किया गया तो बहुत भयावह स्थिति किसान के लिए पैदा हो जाएगी, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के बगैर किसान की पैदावार और किसान की अर्थव्यवस्था बनी नहीं रह सकती।
यह सत्य केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि सारे विश्व में जितने भी किसान हैं, जितनी भी सरकारें, तथाकथित पूंजीवादी सरकार भी, जिसमें अमेरिका सबसे अग्रणी है। आपने सुना होगा कि हर 5 साल में वहां एक फार्म बिल आता है। तो जो पिछले वर्ष वहां फार्म बिल आया 5 साल का, उसमें $810 बिलियन की सब्सिडी किसानों के लिए उन्होंने निर्धारित की है 5 वर्ष के लिए। जी भारत की कुल अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की, यानी हमारी सारी अर्थव्यवस्था का 1/4 से ज्यादा तो वो किसान को सब्सिडी देंगे, तो हम उनके साथ कैसे compete करेंगे? तो ये कारण है किसानों के अविश्वास के, उनकी परेशानी के, कि अगर इस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और मंडी समिति के पोर्टल को खत्म कर दिया, तो हमें फिर पूंजीपतियों, शोषण कर्ताओं और जमाखोरों, मुनाफाखोरों के हवाले कर दिया जाएगा। वो हमारा किस तरह शोषण करेंगे, ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है मुगल साम्राज्य से ब्रिटिश शासन काल में और आजादी के 1965 तक, जबकि खाद्य निगम की स्थापना हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पहली बार भारत में शुरू हुई। ये इसकी पृष्ठभूमि। जी जी शास्त्री जी, जैसे आपने एमएसपी की बात की है, तो जी मेरी जैसे आपसे पहले बात हुई थी तो आपने जिक्र किया था कि जो श्री भानु प्रताप जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, हाई पावर्ड कमेटी, उसमें एमएसपी को लीगल बनाने के लिए कहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि आपको मेरे भी वक्तव्य में कुछ विरोधाभास, कंट्राडिक्शन इसलिए लगा होगा कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि ये तीनों सिफारिशें हमने की थी और अब मैं उसके विरोध में खड़ा हूं, परंतु मेरा उसका समर्थन भी और विरोध भी दोनों सशर्त हैं। अमरजीत जी, जी मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि भानु प्रताप कमेटी में हमने 2 सिफारिशें बहुत जोरदार की थी। एक तो ये जो आपने कही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का वैधानिक अधिकार बनाया जाए, कानूनी अधिकार बनाया जाए। जितने भी 22 या 24 जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, किसान को कानूनी अधिकार मिले कि अगर सरकार उनको नहीं खरीदती तो वो सरकार के खिलाफ भी दावा कर सके और न्यायालय सरकार को बाध्य करे कि जब आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया तो इस पर खरीद करें आप। जी तो ये सिफारिश हमने उस समय की थी। इसी की एक और पूरक सिफारिश थी, सहयोगी सिफारिश थी, कॉम्प्लीमेंट्री रिकमेंडेशन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह की थी कि आपने नाम सुना होगा कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस का, जी जिसका पूरा नाम है कृषि मूल्य लागत और मूल्य आयोग। आयोग नाम से, कमीशन नाम से ऐसी भ्रामक स्थिति होती है, ऐसा इंप्रेशन होता है जैसे कि ये कोई स्वायत्त शासी इंडिपेंडेंट कमीशन है, जबकि तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का एक विभाग मात्र है, जिसका अध्यक्ष, जिसे चेयरमैन कहा जाता है, वो आईएएस का एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है और उसकी सिफारिशें सरकार माने या नहीं माने ये सरकार की मर्जी होती है। तो हमने उस समय ये कहा था कि इसको कानूनी अधिकार बनाया जाए और कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन का दर्जा दिया जाए, विच विल एक्ट एज ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जी और उसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्य हों, और अगर कोई बात सरकार नहीं माने तो वो जुडिशियल कमीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह आदेश पारित करके सरकार को मजबूर करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पर आप खरीद करें, और उसकी सदस्यता भी 5 से 7 रखी जाए, जिसमें कम से कम 2 प्रतिनिधि किसानों के हो, अर्थशास्त्री हो, एक आध प्रशासक हो और कोई न्यायाधिकरण का, जुडिशरी का आदमी हो। ये हमने उसकी कंपोजिशन रिकमेंड की। जी शास्त्री जी, एक बात और, जो बिल है इसमें, जो एक तो एग्रीमेंट वाला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, कि अगर किसान की कोई समस्या होगी, कोई उसकी कंप्लेंट होगी, तो वो एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम एक पैनल बनाएगा, फिर उसकी अपीलेट अथॉरिटी जो डिप्टी कमिश्नर है। और हमें ये लोगों में, किसानों में भी ये भ्रम है कि एसडीएम लेवल पे जो कॉरपोरेट अदारा है, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे भी वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। और जैसे कि जो आपकी सिफारिशें थी उसमें तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बोर्ड बनाने की किया और बड़ी सख्त सिफारिश उसमें की थी आप लोगों ने। आपने ठीक फरमाया वराइट साहब। ऐसा है कि
इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी दो पक्ष हैं। एक तो ये नकारात्मक पक्ष है जिससे किसान को शंका होगी, जो आपने कहा। जी दूसरा उसका एक सकारात्मक पक्ष है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और वह यह है, और जिसके कारण हमने उसकी सिफारिश की थी उस समिति में भी, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है वो केवल उपलब्ध है उन जिन्सों के लिए जो स्टोरेबल आइटम्स हैं, जैसे 6-7 अनाज हैं, गेहूं है, धान है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, रागी है। इस तरह से करीब 7 या 8 अनाज हैं। 6-7 दालें हैं जिसमें तूर अरहर की दाल है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, मोठ है, और साथ ही तिलहन है जिसमें सरसों है, तारामीरा है, तिल है, और सिसेमी है, सोया है, इस तरह से, और कपास और गन्ना। जी इस तरह 22 या 24 जिनसे हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली उपलब्ध है। वो सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनको सरकार खरीद कर भंडार में रख सकती है। दीज आर कॉल्ड एज स्टोरेबल नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज। जी पर एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान जो है वो हॉर्टिकल्चर, जिसमें सब्जियां, सारे फल, दूध, मछली, अंडा और मुर्गी पालन, ये जो पक्ष आता है, किसान इसका भी उत्पादन करते हैं क्योंकि अनाज तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होता आ रहा है। लगातार 1996 से भारत सरकार के पास आवश्यकता से अधिक अनाज जमा होता है और लाखों टन बर्बाद होता है। 7 से 13% खराब होता है गोदाम में पड़ा हुआ, जबकि लोग भूखे सोते हैं। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी आयरनी है। परंतु दूसरी तरफ जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है और ये दूसरी चीजें जिनको पेरिशेबल कमोडिटीज की संज्ञा दी जाती है, जो जी जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनको भंडार में नहीं रखा जा सकता, ज्यादा अनिश्चितता किसान को उनमें फेस करनी पड़ती है। आपने प्राय देखा होगा कि कभी प्याज, कभी लहसुन, कभी आलू, कभी टमाटर, कभी मिर्च, इन चीजों का बाजार इतना गिर जाता है कि किसान की लागत भी नहीं निकलती। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, क्योंकि अपनी स्वयं खेती में कराता हूं, ये सारी चीजें पैदा करने में किसान की लागत 6 से 7 रुपया प्रति किलो आती है। और मैं पिछले से पिछले वर्ष एक बार जब चंडीगढ़ से और बठिंडा गया, उधर डबवाली के पास मेरी ससुराल का गांव है, तो सड़कों के ऊपर किसान, पंजाब का किसान, जिसने आलू पैदा कर रखा था, 2.25, 2.5, 1.5 रुपया में आलू बेच रहा था ढेर लगाकर सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर, जबकि उसका 6-7 रुपया खर्च आता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमने ये सिफारिश की थी कि कुछ कंपनियां ऐसा कर सकती हैं कि दिल्ली और बंबई और इन बड़े बड़े बाजारों में बेचने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी बहुत बड़ी मांग है। मैं लगभग विश्व के 46 देशों में गया हूं, खासतौर से यूरोप के जो देश हैं, वहां 7 महीने तक कोई हरी सब्जी पैदा नहीं होती, बर्फ से ढके रहते हैं वो सारे प्रदेश। यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, तो वहां भारतीय सब्जियों की मांग बहुत बढ़ रही है। और एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय सब्जी और फल जितने स्वादिष्ट हैं और उनकी जो पौष्टिक गुणवत्ता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है पूरे वर्ल्ड में। तो वहां अगर उन्हें भेजना होगा तो भारत का किसान तो भेज नहीं पाएगा महाराज साहब, जी क्योंकि बिल्कुल 95% किसान, ये आंकड़ा नोट करिए आप, जी 2011 के सेंसस के हिसाब से 95% किसानों के पास 4 हेक्टेयर यानी 10 एकड़ से कम जमीन है, और 99.3% के पास 10 हेक्टेयर से कम है। तो कोई भी किसान ये हैसियत नहीं रखता कि वो यूरोप या अमेरिका या किसी विदेशी बाजार में इन सब्जियों का, फलों का निर्यात कर सके। ये काम तो कंपनियां करेंगी। तो अगर वो एक निश्चित मूल्य तय करके किसान के साथ परस्पर परामर्श करके उससे वो चीज उगवाती हैं, किसान को एक निश्चित दाम मिलता है और उसको इस मजबूरी से नजात मिलती है कि वो जब मंडी में लेकर आए। मैंने गुड़गांव की मंडी में पिछले से पिछले वर्ष देखा, भिवानी से एक किसान आया, 4800 रुपया ट्रक का भाड़ा, और प्याज बिकी 3600 रुपए की, वो बेचारा प्याज छोड़कर भाग गया। जी तो ऐसी परिस्थितियां होती है, इसलिए हमने उसको लागू करने की बात कही थी। परंतु जो दूसरा पक्ष है जो आपने कहा, वह सही है कि भारत सरकार ने कहा कि एसडीएम उसके लिए पैनल बनाएगा। तो आप तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से पूरी तरह अवगत हैं, जानते हैं किस तरह का उनका स्वभाव है, किस तरह का उनका रवैया रहता है।
छोटी छोटी बातों के लिए, किसान की जमीन के छोटे छोटे विवाद के लिए वो उसको कई कई साल लटका देते हैं। किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। हमारे परिवारों के बच्चे जब पुलिस में और इन अधिकारी पदों पर जाकर बैठते हैं, वो अपने माँ बाप जैसे किसानों के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं तो बड़ी दुखद स्थिति पैदा होती है। इसलिए इन्होंने ये कह तो दिया कि वो पैनल बनाएगा, ये भी कहा कि 30 दिन में उसका फैसला करेगा, परंतु सवाल ये उठता है कि अगर वो 30 दिन में फैसला नहीं करता उस विवाद का, क्योंकि कंपनी के साथ दाम को लेकर, क्वालिटी को लेकर आपने देखा पंजाब में, गुजरात में पेप्सी के साथ किसानों के विवाद हुए। जी तो इस तरह के जब विवाद खड़े होंगे, झगड़े, तो अगर उसने 30 दिन में उसका फैसला नहीं किया तो उसके लिए तो कोई दंड की व्यवस्था है नहीं। कह देंगे साहब आज तो एसडीएम साहब बैठे नहीं, आज तो मंत्री जी की बैठक में चले गए, आज जिले की बैठक में चले गए, आज वो राजधानी की बैठक में चले गए, आज वो बीमार है। आपके पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए हमने ये कहा था कि उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बल्कि ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बने और उनको समय सीमा दी जाए 30 दिन की, और अगर उस 30 दिन में वो उस विवाद का फैसला नहीं करते तो उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, व्यक्तिगत दंड का। ऐसे नहीं, आपने आरटीआई में देखा होगा ना, राइट टू इंफॉर्मेशन में, जब कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, अगर उसने समय से दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उस अधिकारी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, और दंड होगा तो विभाग पे होगा, वो सरकारी कोष से चली जाती है। तो ये कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए उसकी दुरुस्ती के लिए किसान को ये आश्वासन देना जरूरी है कि तुम्हारा फैसला एक निर्धारित समय सीमा में होगा, और नहीं होगा तो वो एसडीएम 30 दिन में अगर नहीं करता तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और ऐसा किया जा सकता है। मैं बहुत सारे आईएएस अधिकारियों से बात करने के बाद विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ। शास्त्री जी, ये बात बड़ी अचंभित करने वाली है कि जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है और सबको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, उस वक्त केंद्र सरकार ने ये तीनों बिल ऑर्डिनेंस के रूप में पिछले दरवाजे से लाके लागू कर दिए। क्या मजबूरियां आप समझते हैं, जैसे किसान समझता है, किसान के डर है कि कॉरपोरेट जो अदारे हैं उनके प्रेशर में उन्होंने इस समय का फ़ायदा उठाया ताकि लोग तो प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे, बाहर भी निकल पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है सरकार की ये एजम्पशन थी जो वो उनको फेल हो गई, क्योंकि किसान अपनी आने वाली नस्लों के भविष्य को बचाने के लिए आज कोरोना से बिल्कुल नहीं डर रहा, और कोई डिस्टेंस का उसमें मेंटेन नहीं हो रहा, मास्क का नहीं हो रहा। उनको तो अपनी जान के लाले पड़े हैं कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए हमारी ज़मीन बचेगी भी कि नहीं। क्या मजबूरियां रही हैं? आप क्या समझते हैं सरकार को इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ी? मजबूरी नहीं थी वरायत साहब, ये सोची समझी बात थी जी। वैसे तो राजनीतिक लोग जो सरकार में रहते हैं और सरकार के बाहर रहते हैं उनको तमाशा करने की आदत है, खासतौर से भारत में। वैसे तो सारी दुनिया में करते हैं बिल्कुल, और हमारे यहाँ ये मदारीपना, ये जादूगरी हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही होती है जी। और इस वर्तमान सरकार ने तो इसकी सारी सीमाएं पार कर दी। मोदी जी हमारे मित्र हैं, साथ हमने काम किया है, मैं उनके स्वभाव से परिचित हूं। हमारे जो वरिष्ठ नेता अडवाणी जी हैं, वो उनके विषय में ये कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट इवेंट मैनेजर जी। तो मोदी जी को क्या होता है, छोटी सी छोटी बात को भी वो इवेंट बनाकर पेश करते हैं लोगों के सामने। और अब जहां तक संसदीय परंपरा का और संसदीय प्रणाली और नियमावली का सवाल है, तो वास्तव में जो ऑर्डिनेंस का जो रूट है, अध्यादेश का जो रास्ता है, वह तब अपनाया जाता है जब कोई ऐसी चीज हो कि फला तारीख तक अगर इसको नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान समाज को या वैधानिक व्यवस्था को होगा। जैसे कई बार कचहरी किसी कानून को अवैधानिक ठहरा देती, असंवैधानिक, अल्ट्रा वायरस, तो उसमें दुरुस्ती करना एक समय सीमा तक जरूरी होता है, नहीं तो मुश्किलात हो जाती जी। ऐसी परिस्थिति को छोड़कर जो अध्यादेश का रूट है, ऑर्डिनेंस का रूट, वह नहीं अपनाया जाता। परंतु मोदी जी ने उस समय को चुना दो कारण से। एक तो संसद का सत्र आने वाला है, उससे 2-3 महीने पहले इनका खूब ढोल पीटेंगे कि देख लो हमने किसान की इतनी चिंता थी कि हमने
एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर के तौर पे एक असाधारण उपाय अपनाया ऑर्डिनेंस जारी करने का, जिससे कहीं ये लटक नहीं जाए। जी। और दूसरा, उन्होंने समय इसलिए चुना कि आज सारा देश तो पैरालाइज पड़ा है कोरोना के कारण, कोई इसका विरोध नहीं करेगा, कोई सड़क पर नहीं आएगा। तीसरा एक और पक्ष है जो मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते और इनका सहयोगी रहने के नाते व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि वर्तमान सरकार ने डिस्कशन करने का, चर्चा करने का, विचार विमर्श करने की पद्धति को बिल्कुल तिलांजलि दे दी, उसको छोड़कर बैठ गए। और पब्लिक से या किसान के जो लीडर थे, किसान हितों को समझने वाले लोग थे, उनसे विचार विमर्श किए बगैर अचानक इस तरह के उपाय की घोषणा कर देना। और यहीं तक नहीं है, मैं तो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के 60-70% लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और ये भी बात जानकारी के आधार पर कहता हूं कि जब हम जिन कैबिनेट्स में रहे थे, हमने वीपी सिंह जी की कैबिनेट देखी, हमने नरसिंह राव जी की कैबिनेट देखी, हमने मनमोहन सिंह जी के समय की कार्यप्रणाली देखी, और वाजपेयी जी के समय तो मैं खुद था मंत्रिमंडल में, बड़ी गंभीर और बड़ी तेज तर्रार चर्चाएं हुआ करती थी। कई बार तो बहुत कटुता पैदा हो जाती थी बहस में, परंतु वाजपेयी जी सुनते थे और कई बार जो उनका विचार था उसके विपरीत कही हुई हमारी बात को मानकर उसको स्वीकार करते थे और लागू करते थे। जी। मोदी जी ने विचार विमर्श की ये प्रणाली समाप्त कर दी है। कैबिनेट के अधिकांश मंत्री निजी तौर पर मुझे बताते हैं कि कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं होती, सारे आदेश प्रधानमंत्री के कार्यालय से आ जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। आप तो कह रहे हैं कि किसान हितों को जानने वाले या किसान नेताओं से बात करते, ये तो अपने मंत्रिमंडल के लोगों से बात नहीं करते, हमसे आपसे क्यों बात करते हैं? तो ये जानबूझकर इनको तमाशा करने की और ये दिखाने की आदत है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं और मेरे जितना जानकार कोई नहीं है, जो मैं कहता हूं वही सही है। ये अहंकार इन्होंने बहुत बड़ा पाल रखा है, इसलिए विचार विमर्श की जरूरत नहीं समझी इन्होंने और उसको अलग से इवेंट बनाने के लिए अध्यादेश का रूप किया, जो संसदीय प्रणाली के मूल भावना के सर्वथा विपरीत है, उसका उल्लंघन है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं तो करता हूं। शास्त्री जी, जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, रेल पटरियों पे बैठे हैं, उन्होंने टोल प्लाजा पे अपने धरने लगा रखे हैं, कॉरपोरेट के जो मॉल्स हैं वहाँ हैं, पेट्रोल पंपों पे हैं, और उसकी स्थिति ये बन गई कि अब पंजाब में कुछ कोयले की स्थिति की वजह से पावर प्लांट सरकार कहती है हमें बंद करने पड़ेंगे, कट्स लगाने पड़ेंगे। आने वाले दिनों में और भी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन किसान की बहुत बड़ी समस्या है। आप जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आप किसानों के प्रतिपक्ष में हैं, उनकी बात समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर उसके लिए तो कोई ना कोई संघर्ष तो करना पड़ता है। बच्चे को जब माँ दूध नहीं देती तो वो फिर चिल्लाता है, अपने हाथ पैर मारता है, और जब माँ फिर भी नहीं मानती तो बच्चा माँ को दंदी भी काट देता है। तो इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है किसानों का, आप उसमें, क्योंकि आप सभी यूनियंस को जानते हैं जो पंजाब में हैं, हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, तो इन किसानों को वो अपने संघर्ष में सफल हों, वो उनकी जो बात सुनी जाए और समाधान निकाला जाए उसका। तो क्या समझते हैं, ये संघर्ष सही दिशा में जा रहा है? जहाँ लगता है, हम चाहेंगे कि, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से पंजाब के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि किसानों को कोई आप सुझाव देना चाहें कि आप इस संघर्ष में ये शामिल करिए और ये ना करिए, या ऐसे करिए ताकि आप अपने मकसद को लेके कामयाब हो जाएं। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हमारे पंजाब की, वो इस संघर्ष को हाईजैक करने की कोशिश करती हैं कि अगर कल को केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बातचीत शुरू की तो उस पैनल में तो जाएंगे किसान लीडर, और आने वाली जो विधानसभा के चुनाव हैं 2022 में, तो उसमें तो ये पार्टियां फिर खत्म हो जाएंगी। इनको सबको डर पैदा हो गया, और ये इसलिए सब अपने अपने झंडे उठा के अपने अपने अलग से प्लेटफॉर्मों पे संघर्ष कर रही हैं। किसानों को समर्थन देने की बजाय ये अपनी अपनी जो कहते हैं कि छवि बचाने के लिए लगे हुए हैं। अमरजीत सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया और इसके 3-4 पक्ष हैं, एक पक्ष नहीं है जी। प्रथम पक्ष तो यह है कि जब भी किसी समुदाय को, खासतौर से लोकतंत्र में,
किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज के वर्ग को कोई कठिनाई आती है तो उसको विरोध करना, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन करना, और अगर पक्ष में बात हुई तो उसके समर्थन में रैली निकालना उसका न केवल वैधानिक अधिकार है बल्कि उसका वैधानिक और सामाजिक कर्तव्य है, करना चाहिए। अगर नहीं करें तो सरकारें संवेदनशील नहीं रहती। जी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है इस प्रकार का रोष प्रदर्शन करना, तो ये तो जरूरी है। परंतु आपने माँ और बच्चे की जो उपमा दी उसमें दोनों पक्षों में एक संवेदनशीलता रहती है। बच्चे का एक अधिकार रहता है और उस अधिकार को मांगने के लिए वो अपने रोने का प्रयोग करता है, और माँ की संवेदनशीलता है कि उसकी पहली चिल्लाहट सुनते ही वो भागकर जाएगी, और नहीं आती तो कोई मजबूरी होगी, उसको दुख होगा। अपवाद को आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन को। जी तो ये जो माँ बेटे का संबंध है, सरकार और जनता का संबंध भी इसी प्रकार का होता है। आशा तो ये बिल्कुल की जाती है बिल्कुल। कि बेटे को भूख लगने के समय रोने की आवश्यकता नहीं पड़े, माँ को याद रहे कि समय हो गया मुझे अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को दूध पिलाने का, वो भागकर आएगी और दूध पिलाएगी। तो सरकार को इतना संवेदनशील होना चाहिए, पर उसकी तो आप बात भूल जाइए, कम से जी कम भारत के संदर्भ में। तो सरकार अब संवेदनशील रही नहीं है। बात ये कि जी, सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इस मामले में। नहीं, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और वो संवेदनशील होती है तो जो रोज सड़क के ऊपर भ्रष्टाचार होता है खुले, जिसका मैंने पहले भी चर्चा किया, हमारे ही परिवारों से लाकर लोग पुलिस में और प्रशासन में जो काम करते हैं, हमारा तो वही सरकार है ना, हमें मोदी से कोई सीधा वास्ता तो नहीं पड़ता है। जी हमारा वास्ता तो सरकारी दफ्तरों से, पुलिस वालों से सड़क पर पड़ता है। हम तो उसी को सरकार जानते हैं, वहां क्या दुर्गति हुई ये किसी से छिपा हुआ नहीं। अब दूसरा पक्ष ये है कि वो रोष प्रकट तो करें, परंतु उसका प्रकार क्या हो। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं किसानों की समस्या से बहुत मन से जुड़ा हुआ हूं और कोशिश की है उसकी हर एक बात को समझने की। मैं ये तो दावा नहीं करता मोदी जी की तरह कि मैं सारी बात जानता हूं, परंतु काफी अच्छी तरह जानता हूं। परंतु मैं आज तक कभी किसी किसान आंदोलन में नहीं गया। उसके 3 कारण बताता हूं आप, और मैं वर्तमान किसान नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो जी इन बातों को ध्यान से सुने। एक तो ये कि पूरे भारत में 225 के करीब, कोई 230 कहता है, कोई 234, कोई 260 किसान संगठन है, और वो सब अपनी अपनी तूती अलग अलग बचाते हैं, और देश के करोड़ों किसानों को संगठित होने की बात कहते हैं। तो जब आप किसान हैं और किसान के प्रति हमदर्द हैं और ज्यादा उनसे विचारशील और समझदार हैं, तो भाई आप एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, आप अपनी अलग अलग दुकान खोलकर क्यों बैठे। तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा ये कि उनका जो आंदोलन का प्रकार है, जो आपने कहा कि वो टॉल पर बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, रेल पर बैठ जाएंगे, कोयला आना बंद हो जाएगा, पावर के जो जनरेशन प्लांट थे उनको बंद करना पड़ेगा, तो इससे हानि किसकी होगी। इससे कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह की हानि नहीं होगी, बादल साहब की हानि नहीं होगी, मोदी साहब की हानि नहीं होगी। वो तो अपने एयर कंडीशन में सुरक्षित बैठे हैं। विरोध तो कर रहे हैं आप उनका, और नुकसान हो रहा है आम आदमी को। किसी को अस्पताल जाना है, किसी को हवाई जहाज पकड़ना है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को अपने इंटरव्यू के ऊपर जाना है, किसी बच्चे को परीक्षा में जाना है, किसी की कोई मुकदमे की तारीख है, वो हजारों लाखों लोग सड़क के ऊपर खड़े रह जाते। दुर्गति तो उनकी होती है, आपका क्या उद्देश्य है समझ में नहीं आता। तो मुझे इसमें कोई अक्लमंदी दिखाई नहीं देती कि आप जिनको परेशान करना चाहते हैं वो तो सुख से बैठे हुए हैं, और जिनके लिए आप कर रहे हैं उन्हीं को आप परेशान कर रहे हैं। तो ये बड़ी विरोधाभासी बात है। तो किसान संगठनों को, नेताओं को इसके ऊपर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है कि वो अपने आंदोलन का प्रकार बदलें। अब आप कहेंगे कि आपने कह तो दिया प्रकार बदलें, तो प्रकार हो जी क्या। तो बिल्कुल प्रकार 2 होंगे बराज साहब। एक तो ये कि अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखें, पेशों की दृष्टि से, तो किसानी भारत का सबसे बड़ा पेशा है। 60% से ज्यादा लोग अभी भी किसानी के ऊपर निर्भर हैं। 50% के करीब उसमें रोजगार मिलता है। 90% हमारे सुरक्षा बलों के, जिसमें पुलिस भी है, अर्धसैनिक बल भी है और सेना भी, उनके सिपाही से लेकर अफसर तक 90% ग्रामीण क्षेत्रों से जाते हैं, जी जो देश की रक्षा और समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर उनके परिवारों का
शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो किस भावना से देश की सेवा करें। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है, किसान सबसे बड़ा वर्ग है अगर पेशे की दृष्टि से देखें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको अगर संगठित होकर और ये तय कर लें कि जो भी राजनीतिक दल, हमारी ये जो बातें हमने आपने की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का, ट्रिब्यूनल बनाने का, विवाद सुलझाने में अधिकारी नहीं करता तो उसको दंड देने का, और किसान आयोग न उसको जो किसान कमीशन है, जो राष्ट्रीय कृषि मूल्य और लागत आयोग है, उसको वैधानिक दर्जा देने का पक्का वादा करेगा और ये कहेगा कि विधानसभा या लोकसभा बनते ही सबसे पहला प्रस्ताव और विधेयक इस बारे में पारित होगा तो हम उसको वोट करेंगे। जिस दिन किसान वर्ग इन मुद्दों के आधार पर वोट करना सीख जाएगा, कोई सरकार हो, मोदी हो या कैप्टन हो या कोई हो, नाक रगड़ देगी आकर सड़क के ऊपर आपके सामने। पर आप वो तो करते नहीं है। उस समय तो आप कोई सिख हो जाएगा, कोई हिंदू हो जाएगा, कोई गुजर हो जाएगा, कोई मुसलमान हो जाएगा, कोई जाट हो जाएगा, कोई सैनी हो जाएगा। और इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों का धर्म के और जाति के, वर्ग के, क्षेत्र के, भाषा के आधार पर सारे राजनीतिक लोग उनको भड़काकर उसका लाभ उठाते हैं। किसान वर्ग की ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, बस आने वाले चुनाव में केवल उस पार्टी को वोट करेंगे जो इस बात का वादा करेगा, और अगर उसने नहीं किया तो उसके बाद हम विधानसभा को कई लाख लोग घेर लेंगे, चाहे साल भर जाए या नहीं जाए, और किसी मंत्री एमएलए को उसके इलाके में घुसने की इजाजत नहीं होगी। ये होना चाहिए आंदोलन का स्वरूप। जी जी। शास्त्री जी, आपने बीच में एक बार जिक्र किया था कि अमेरिका अपने किसानों को हर साल सब्सिडी उनके अकाउंट में भेज देता है, और जैसे मोदी जी ने शुरू किया लेकिन वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, 500 रुपया महीने का आता है, और वो भी उन्होंने तब किया जब इलेक्शंस आने वाली थी 2019 वाली, और आगे भी वो लॉलीपॉप चल रहा है, कब देने हैं, कितने पैसे देने हैं, ये भी वो तय करते हैं कि कैसे पहुंचने हैं। लेकिन जो बात दूसरी है सब्सिडी देने वाली, जो बात हमारे नेता कहते हैं, हमारे ऑफिसर्स कहते हैं कि WTO हमको अलाउ नहीं करता कि हम डायरेक्ट किसान के अकाउंट में इतना पैसा डाल दें। तो क्योंकि आप इस मामले को WTO वाले वो ग्रीन बॉक्सेस सब्सिडी जो हैं उसके बारे में आप मुझे लगता है ज्यादा बता सकते हैं। हमारे किसानों में कई भ्रांतियां भी हैं इसके बारे में। WTO के जब नेगोशिएशन हुए थे बराज साहब जी, तो उसकी जो प्रस्तावना और जो भूमिका तैयार की थी वो डंकल प्रस्ताव के नाम से मशहूर है। आर्थर डंकल एक थे जिन्होंने वो तैयार किया था दस्तावेज। वो 400-500 पेज का दस्तावेज है। वो मैंने 3 बार पढ़ा है। एक तो राजनीतिक लोग 99% नहीं, हो सकता 100% ऐसे हो जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा, अधिकारियों ने जरूर पढ़ा जी। उसमें क्या था कि सब्सिडी का एक डी मिनिमस लेवल तय किया था कि इससे ऊपर सब्सिडी नहीं जाएगी। वो था जितनी भी एग्रीकल्चर की जीडीपी होगी, कृषि का सकल उत्पाद किसी देश का, जी, उसके 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत में किसी भी स्टेज के ऊपर कृषि जीडीपी का, एग्रीकल्चर जीडीपी का 6.7% से ऊपर सब्सिडी कभी नहीं गई जी, आज भी नहीं है। इसलिए WTO का हवाला देना बिल्कुल गलत है, बहकाना है, भ्रम पैदा करना। दूसरी ये बात कहना कि वो सब्सिडी उसको डायरेक्ट पेमेंट को अलाउ नहीं करते, ये गलत है। मैं स्विट्जरलैंड जाता रहा हूं, मेरी बेटी वहां 6 साल रही है, तो 3 वर्ष मैं गया, और जब भी जिस देश में जाता हूं तो वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की समाज व्यवस्था, खासतौर से खेती की अर्थव्यवस्था को का अध्ययन करने का प्रयास करता हूं। तो मैं वहां के फेडरल ऑफिस में गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बाकायदा समय नियत करके अपॉइंटमेंट लेकर, और मैंने देखा कि स्विट्जरलैंड जैसा देश, जो सबसे अमीर देश माना जाता है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व में, वो 1 हेक्टेयर वाले किसान को 2,993 यूरो, अगर भारतीय रुपए में उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 2,40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान को डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफर करता है। जी। अगर आप एकड़ पर उसको लगाएं तो 90-95 हजार रुपया बैठता है।
जी अब मोदी जी ने देना शुरू किया 6,000 रुपए किसान को प्रति एकड़ नहीं, तो अगर स्विट्जरलैंड दे सकता है, दूसरा मॉडल जापान का है, उनका एक दूसरी प्रकार की सब्सिडी, वहां आज भी चावल को 70 से 78% सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि मैं भारत जापान मैत्री संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं वाजपेयी जी के समय में। जी इंडिया जापान एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप कहते थे उसको, तो मैं वहां जाकर स्वयं उनके अधिकारियों से बात करके दफ्तर में जाकर ये बात देखी। तीसरा मॉडल मैंने अमेरिका को बताया, जिसको सबसे अग्रणी पूंजीपति देश कहा जाता है, और हम ये कहते हैं हमारे समाजवादी और दूसरे किसान नेता कि हम अमेरिका की पद्धति को अपना रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, नेताओं के पैर पकड़ लूंगा, वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड और जापान की पद्धति को अपना लें तो किसान को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। जी जी क्योंकि अगर आप 90,000 रुपए एक एकड़ में ट्रांसफर कर देंगे किसान के लिए, जैसा स्विट्जरलैंड करता है, और फिर ये छूट देता है, ये फ्रीडम देता है कि आपका जो भी उत्पाद है, दूध है, मछली है, अंडा है, आपका कोई फसल है, सब्जी है, फल है, जिस भाव पे आप बाजार में बेचो, हमने तो आपको 95,000 रुपए 90,000 रुपए एक एकड़ का दे दिया। तो जी मैं तो कहता हूँ भारत के संदर्भ में आप 10,000 रुपए एकड़ ही दे दो भाई, तो जो जो 2.5 किल्ले का आदमी उसको 25,000 रुपए मिल जाएगा, वो तो फिलहाल उससे भी संतुष्ट हो जाएगा, और सारी सब्सिडी खत्म कर दो आप। बिल्कुल सब्सिडी सही क्या बात। होती है जी कि जी 30,000 ट्रैक्टर पे दे रहे हैं, 100 ट्रैक्टर की सब्सिडी है, जिसने अधिकारी को रिश्वत दे दी उसे 30 के बजाय 5 रिश्वत में ले लेगा, उसको 25 मिलेगा। ये सब तमाशे करते हैं टुकड़े टुकड़े। ये एक दिन का काम है वराज साहब, अगर मेरे हाथ में हो तो आज शाम को मैं सारे आदेश पारित कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें मुझे, परंतु कोई सुनना नहीं चाहता, और किसान नेता भी और राजनेता भी लोगों को भ्रम में उलझा कर रखना चाहते हैं। अगर वे समस्या का समाधान कर दें तो लोग उनकी हाजिरी भरने क्यों आएंगे? सुबह सुबह आप किसी नेता या अधिकारी के दफ्तर में जाइए, सैकड़ों लोग क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान हो जाएगा तो वो क्यों पूछेंगे इनको? तो ये जानबूझकर सोचा समझा षड्यंत्र है लोगों को लटका कर रखने का जी सरकार की ओर से, और किसान जी नेताओं की और जनता की ये बात समझ में नहीं आती। शास्त्री जी, इस वक्त हम एक उपभोक्ता की बात भी करेंगे, क्योंकि किसान की बात हो रही है, तो हमारे दर्शक सोचेंगे कि भाई अगर किसान की फसल जो है वो महंगी बिकेगी तो कंज्यूमर को भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपके साथ एक दो डाटा शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि 1997 में हमारे यहाँ जो गेहूं का दाम था वो 1 रुपया 5 पैसे प्रति किलो था, और जो डीजल था उस वक्त 1 रुपया 41 पैसे लीटर था। तो 2 किलो गेहूं बेचकर किसान जो है वो 1 लीटर डीजल ले लेता था, और 69 पैसा उसकी जेब में भी आ जाते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज 4 किलो गेहूं बेचते हैं तब जाके हमको 1 लीटर डीजल लाना पड़ता है किसान को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की स्थिति में गेहूं का जो रेट है वो 36 रुपये 50 पैसे होना चाहिए था, जो 18 रुपये के करीब 18-19 रुपये के बीच में चल रहा है। तो इस स्थिति से कि जो उपभोक्ता है उसको भी ना नुकसान उठाना पड़े, तो इसके लिए मुझे याद है आपने एक बात सुनाई थी मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जब दालों के भाव बहुत चढ़ गए थे। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों से भी वो बात आप साझी करें। आपने जो बिंदु उठाया ये वराज साहब बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बात की मैं बधाई दे दूं आपको इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, जी कि जितने टू दी पॉइंट बिंदु आपने उठाए, बहुत कम पत्रकार, बहुत कम मीडिया पर्सन इस तरह से टू दी पॉइंट बात उठाते हैं। आपका तो शुक्रिया इसकी सर। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और हर एक विषय को अलग अलग बिल्कुल सटीक बात आपने कही है, एकदम टू दी पॉइंट। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वाला बताऊं कि मैं उस समय नेपाल किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया हुआ था, जल संबंधी वाटर रिसोर्सेज की कॉन्फ्रेंस में। तो घर पर फोन आया, जब मैं लौटा तो पत्नी ने बताया कि डॉक्टर साहब के यहाँ से 2-3 बार फोन आया। मैंने आकर सूचना दी तो बुलाया, तो मुझे बैठते ही डॉक्टर साहब ने कहा, और इंसिडेंटली डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे टीचर भी रहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जी और जब मैं एमए किया था इकोनॉमिक्स, और मेरा बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वंडरफुल इकोनॉमिस्ट एंड अ वंडरफुल पर्सन। तो मुझे बोले, सोपाल आई एम वेरी वरीड अबाउट दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्राइसेस सिनेरियो। तो मैंने कहा सर आपकी चिंता तो ठीक है, प्रोडक्शन वाला मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है, आपने 15 मिनट का समय मुझे दिया, आप प्रधानमंत्री हैं,
और मैं प्राइसेस की बात केवल करूंगा। एक क्लासिकल केस है सर कि आप 43 रुपया तूर की दाल का, अरहर की दाल का किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं और बाजार में ये दाल 140 रुपए में बिक रही है। जबकि मैं कृषि संबंधी संसदीय समिति में था तो हमने दाल प्रोसेसर्स एसोसिएशन से 4 जगह मीटिंग की थी। पूर्वी भारत की कलकत्ता में, दक्षिण भारत की चेन्नई में, पश्चिमी भारत की अहमदाबाद में, उत्तर भारत की दिल्ली में। जी। दाल प्रोसेसर्स की एसोसिएशन ने हमको बताया कि अनाज से दाल में कन्वर्ट करने में 8% मिलिंग का खर्चा आता है और उसको भंडारण करने में उनके पैसे का ब्याज भी लगेगा, बोरी में भी भरेंगे, ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो हमने कहा भी इस पे 25% आप मार्कअप कर लो तो प्रॉफिट होता है अच्छा आपको। तो हमने कहा सर आप 50% मार्कअप कर दीजिए, 100% कर दीजिए, तब भी 43 का 86 बैठ का 140 कैसे हो गया? गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं क्या ये उसके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि क्या करें? मैंने कहा आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि आपको आशा है कि नवंबर दिसंबर तक दाम गिर जाएंगे, ये बात थी जुलाई की। तो बोले हाँ। मैंने कहा सर किस आधार पे? कि मैंने मानसून। तो मैंने कहा सर मानसून अगर खराब हो गया तब क्या करोगे? आपकी मर्जी से थोड़ा ही चलेगा मानसून। और अगर मैं आपको ये सुझाव दूं कि ये दाल के दाम कल सुबह नीचे आ जाएंगे तो थोड़े चिढ़कर बोले, बड़े हैं मेरे अध्यापक रहे, क्या जादू की छड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? तो मैंने कहा जी जादू की छड़ी मेरे कोल नहीं है सर, ਤੁਹਾਡੇ कोल है। ਤੁਹਾਡੇ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ है, आवश्यक जिन्स कानून, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रावधान है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर सकती है तो उच्चतम मूल्य भी घोषित कर सकती है, एमएसपी भी और एमआरपी भी, मिनिमम जी। सपोर्ट प्राइस भी और मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी। तो मेरा ये सुझाव है सर एक प्राइस बैंड क्रिएट कर दीजिए। 43 आप किसान को कह रहे हैं और कहिए 85 से ऊपर दाल नहीं बिकेगी और प्राइस जो है वो स्टोर में डिस्प्ले होगी। कोई इससे ऊपर बेचता पाया गया तो वो सजा याफ्ता होगा, सजा का उसको प्रावधान कर दीजिए तो कल सुबह दाम गिर जाएंगे। अडानी ने 28 रुपए में 32 रुपए में दाल खरीदी, बेच रहा था 140 रुपए में। तो आप पूंजीपतियों का समर्थन कर रहे हैं कि किसान का? ना आपको उपभोक्ता के हित की चिंता है ना किसान के हित की चिंता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उत्पादन अच्छा होगा और सरकार की नीयत ठीक होगी, उसके पास इतने वैधानिक अधिकार हैं कि वह चाहे तो किसान को भी और उपभोक्ता को भी दोनों के हित के संरक्षण का एक मध्य मार्ग, एक आदर्श मार्ग, एक आइडियल तरीका अपना सकते हैं, बशर्ते कि उनकी नीयत हो, इंटेंशन हो। और इसमें वरायत साहब, मैं सरकारों में रहा हूं, संसद में भी और मंत्री के तौर पर भी, मैं ये कहता हूं कि कॉम्पिटेंस की कमी नहीं है। कई लोग कह देते हैं कि साहब पॉलिटिकल लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, कमी नीयत की है। कॉम्पिटेंस तो बाजार में मिलती है, मेरे आप जैसा कोई मुंशी मिल जाएगा, कुछ ही को ड्राफ्ट बना के दे देंगे, पर नीयत बाजार में नहीं मिलती। वो तो आदमी को अंदर से तय करनी पड़ती है, अपनी अंतश्चेतना के आधार पर, आत्मा की आवाज पर। शास्त्री जी, आपने अंत में जो बात कही है जी, कि जो नीत है वो बाजार से नहीं मिलती, वो तो आपको अंदर से लानी पड़ेगी। आपने बहुत खुलकर बातें कही हैं। मुझे लगता है अगर सरकार का कोई पक्ष, कोई उनका अधिकारी ये बात सुनता हो तो उनको कल सुबह अनाउंस कर देना चाहिए कि वो किसानों के साथ बात करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की बात सुनना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सरकार माई बाप होती है और इस वक्त जो हमारी सरकार है, हमारी माई बाप है किसानों की, वो बात नहीं सुन रही। उनके बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और इस वक्त जो आपने बहुत बात की, अच्छी बात, कि जब संवाद खत्म हो जाता है तो समस्याएं पैदा होती हैं और जब संवाद होता है तो समाधान होते हैं। और किसानों के संघर्ष के बारे में भी आपने बहुत स्पष्ट किया कि किसानों को इकट्ठा होना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो किसान है। अगर किसान जो सभी यूनियन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो सभी पार्टियां उनके द्वार पे आके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएंगी। और आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने किसानों से बिना बात किए ये ऑर्डिनेंस लेके आए और फिर उनको बाद में कानून का रूप दिया। और हम आशा करते हैं कि इस वक्त जो हमारी केंद्र सरकार है, जो सरकारें दूसरी हैं, वो इस टकराव का रास्ता छोड़ के किसानों के साथ बात करें, उनकी बात सुने, इसमें कोई ना कोई समाधान निकलने का जो है वो बहुत बड़ी आशा बनी रहती है। शास्त्री जी, इस आस से
कि आने वाले दिन हमारे सुखद होंगे, हम अपने देश की तरक्की में हिस्सा डाल सकेंगे और किसान अपनी फसलें बोच सकेगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, क्योंकि कोरोना महामारी का आने वाले दिनों में और भी प्रकोप बढ़ने का जो डर है, हम इस सारी स्थितियों से निकलने के लिए भगवान के आगे अरदास करते हैं कि आप जैसे लोग, जो पुराने लोग बैठे हैं, उनकी बात माने और इस समस्या का समाधान निकालें। सो श्री सोमपाल शास्त्री जी, हमारे साथ बात करने के लिए और बहुत दिल से बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद युवराज सर, थैंक यू। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।